Hey Jimmy, I'm a 16-year-old aspiring comedian. Tell me something I can tell my friends when they take the piss out of me for wanting to be a comedian. Nice one. Where are you, man? Where are you? What's your name, my friend? Charlie. Come on up. We'll get a selfie. Come on. Where's Charlie? Oh, is that Charlie? Okay, yeah. Hey, Barry. It'll be quick. Just jump over. Don't worry about the security guys. They're not as happy as I'd like, but what can you do? You come around this side. Sorry, don't worry too much. Come on, Charlie. Come on up, Charlie. So look, all I would say, my friend, is stand-up comedy is very... It's nice to meet you, man. How are you? You got a phone? Yeah. Okay, great. We'll make a little video for you. All right. Okay, here we go. Yeah. So, Charlie, what I would say is comedy is it's like the rest of life. It's self-assignment, right? Self-assignment. You got to do the work, and the work. I mean, it's really good because otherwise, if you had just told him, uh, it would have been taped in that show. It would have been released. Definitely not the very next day because they take time to edit stuff, and then they upload it. Uh, which is good because the reason why he has recorded in his phone is that the moment he goes back, not even goes back to his house, but when he goes off stage, he still has that memory in his device. He can see it every single day and remember. Uh, I mean, going back when you have already achieved, or even when you will be at your lowest points in whichever field you are. If like someone whom you are inspired by to such an extent that like you are in you're in that profession just because of that personality or that the group. uh, their words for you will like uh, push you or like lift you from your lowest points. So that was a really well thought of thing done by him, I would say. Really is writing jokes. And what I would say is, at the other end of it, I'm just going to just wheel you around here. You see, because all the people, right? If things work out, that's Christmas future, right? That's where you want to be. Oh my God, Charlie doesn't know how to react. Maybe he was like, hmm? I mean, he doesn't know what moment it is for anyone if you just extend it to whichever domain. Uh, I got curious after watching this for the first time when I got to know about him, and I found out about the guy who's right beside Jimmy Carr, and apparently he has not yet done any appearance, like has any firm appearance on YouTube or Instagram so far. I bet since he's a 16-year-old boy, he was at that time he must be studying, and I think we might see more of him in future because the video has been released on YouTube 4 days prior to when I'm watching this right now. So it's 2026 March. Um, yeah, I mean it will take him a few years to graduate and uh, maybe get hold of stand up by then. Yeah, it makes sense. I thought it was a video dated very like way back, and that is why I was thinking that why hasn't he progressed? But now realizing that okay, no, it was shot very recently. So yeah, yeah, it's really good for him. Write jokes. And I would say the advice I would give you is be a non-fungible human. You're not in competition with anyone else, right? No one can beat you at being you. Don't be the best, be the only. Good luck, man. Take care, brother. Take care, cheers. Careful getting down. Nice. Wow. Be a non-fungible comedian. Don't be like someone. Be the only one. It's like
how do we express? He's just said to become the person who cannot be replaced at all. And I feel like he must have thought, he must have given this a thought. I mean, I would say at least 100 times. Uh, would have thought of different scenarios that what if given a chance of me telling a younger person who would enter the field in which I have been working for so long, what would be the advice I would be giving him? And then he had improvised it, and this, I think, it was so much of stuff he wanted to say condensed into a concise 3 or 4 lines. And if you just iterate over this like time over time, you'll just realize how 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 well thought of this version was. I mean, yeah, one wherein okay, this is mostly Hindi, so इसमें this guy is Utkarsh Singh, and his podcast में he had talked about Anwar Singh Basi, and now a good thing about that is him and Anwar Singh Basi had started at the same time, but Anwar Singh Basi had a huge intensity when he had started doing stand up. So now when we relate it back to any other field, it's like in the initial years when you put in a lot of work, you get the outcome in the future years, and also you grow exponentially. And the exponential growth is compared to the other people who at the time when you had started also had started, but they were putting in way less efforts than you. And now they were not giving less efforts, it was actually the other person giving way more efforts. So it is all about that. The discussion is all about that. There are 6 different instances wherein I found things to be really good, which I would like to rehear and also document for this channel. So one is at around 22 minutes or something. मतलब वो नहीं हो रहा रेगुलर लोगों से, वो आप लॉन्डो लॉन्डो में कर लो और किसी को सुना दो तो कहेंगे कि जेल भेजो इनको बेंच वाला। भाई और आपकी इनसिक्योरिटी तो ट्रिगर हो सकती है ना, कहीं पता लगा आप अपनी बात कर रहे हो सेक्स रिलेटेड और आपकी दिख जाए शक्ल पे कि भाई ये बंदा सब अपनी कर रहे हैं सब अपनी कर रहे हैं भाई, 101% सब अपनी कर रहे हैं ठीक है तो ठीक है। पर भाई मैंने ये देखा है कि मैं जितने कॉमेडियन से मिला हूं, मैंने आपसे पहले भी बोला कि भाई मेरे को लगता है कि आप लोगों की ना जो एक्सट्रोवर्जन है वो अलग लेवल है भाई। अब वो ऐसा क्यों है भाई? उसका रीजन अगेन भाई कि द काइंड ऑफ पीपल दैट वी आर मीटिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस इन एन ओपन माइक, वो बहुत ही खुले हुए लोग हैं, ठीक है? तो आपको वो थोड़ा भी 1% चांस नहीं देते टू बी एन अंडर कॉन्फिडेंट गाय ऑन स्टेज। यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू ओन द रूम, वो वाला सीन हो जाता है। तो और इतने ऐसे ऐसे ओपन माइक्स देख लेते हो ना आप कि भाई 2 ही ऑडियंस बैठी, आपको सोलो करना है, अब 2 लोग को आप 40 मिनट तक हंसा रहे हो एंड यू हैव टू डू बिकॉज यू हैव ओनली 2 पीपल, ठीक है? आप मतलब एक तो हो कि आप शो ही कैंसिल कर दो, दैट्स अनदर थिंग। एक है कि यार नहीं मैं कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 भी नहीं है फिर, तो मैं 2 में 40 मिनट 50 मिनट कर लेता हूँ, तो वो भी काटे कि भाई 2 बंदों को आपने 50 मिनट तक एंगेज रख लिया, वरना तो उठ के चले जाएंगे वो। तो द काइंड ऑफ पीपल दैट यू आर गेटिंग, द काइंड ऑफ रूम्स दैट यू आर गेटिंग, हर समय डिफरेंट ऑडियंस आ रही है, किसी को कुछ चाहिए, तो ना बहुत आपको थिक स्किन बना देता है वो। तो वो एकदम फिर आप वैसे हो जाते हो कि ठीक है यार थोड़ा सा मैं खुल जाता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स रहता हूँ, और वही फिर आप इवेंचुअली अपने कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगते हो। तो आपने सबसे ज्यादा बॉम्ब कहाँ करा, कुछ याद है कि आपको लगा हो कि भाई ये शो तो कॉमेडी छोड़ना बनता है भाई? ये तो बहुत सारे, मैं बताता हूँ आपको। there is a reason you called me तुषार। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। लखनऊ में एक डीलर्स मीट का शो, ठीक है, लॉक बट अदरवाइज दैट्स हाउ आई डील विद इट। और यूजुअली कॉमिक्स अभी वही होता है कि अ गुड शो देन इरेजेस द मेमोरी ऑफ इट, कि एक अच्छा चला गया तो वापस आ जाता है। तो भाई आप कर रहे हो 2019 से कॉमेडी, 2019 से अभी आपके चैनल पे 2 वीडियोस हैं सिर्फ, 2 वीडियोस। तो इतना टाइम क्यों लगता है एक कॉमिक को वीडियोस निकालने में? भाई मैं आपको बताता हूँ, तो जब ये कॉमेडी सर्किट वाज इनटू 2018-19 ना, तब देयर वाज दिस थिंग जो आप कह लो
सर्किट का एक वे ऑफ डूइंग कॉमेडी वॉज कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सोलो फर्स्ट. तो हर कॉमिक उस टाइम पे सिर्फ सोलो पे ध्यान देता था. देवर नेवर इन अ रश टू पुट आउट वीडियोस, नेवर इन अ रश टू गेट वायरल, नेवर इन अ रश कि रील्स निकाल दूं, कुछ भी कर. रील तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम पे. तो सिर्फ एक फोकस रहता था हर कॉमेडियन का कि आई शुड हैव अ 60 मिनट शो विच इज वेरी वेरी टाइट. कैनवस लाफ क्लब होता था, तो कैनवस लाफ क्लब ने ना बहुत अच्छी एक हायरार्की बनी थी. तो यू आर एन ओपन माइकर, यू गेट 5 मिनट्स, यू हैव टू ब्रिंग समवन, दैट्स कॉल्ड ब्रिंगर. उसके बाद आप अच्छा कर रहे हो तो यू विल बी अपग्रेडेड टू ओपन स्पॉट. ओपन स्पॉट इज 7 मिनट्स एंड यू डोंट हैव टू ब्रिंग एनीवन एंड यू डोंट हैव टू पे टू डू ओपन माइक. ओके. ठीक है. एंड देन यू गेट स्पॉट्स इन एज 15 मिनट्स कॉमेडियन लाइनअप में, 15-15 मिनट के 3 कॉमिक. देन यू गेट अ स्पॉट इन 30-30, 2 कॉमिक्स 30-30 मिनट्स कर रहे हैं, एंड देन यू डू सोलो. तो उस टाइम पे कॉमिक्स जो हमारा ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस रहा था वो यही था सबका कि पहले सोलो बनाओ. आपके पास सोलो अच्छा होना चाहिए, उसमें से 10 मिनट निकालो एंड देन अगेन गिव दी 40 मिनट्स जो आपका अच्छा चल रहा है, नए 10 मिनट और बनाओ, और इस तरीके से रिप्लेनिश होता रहता था डेटा. अब इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि स्टैंड अप नया था तो दिस अप्रोच यूज टू वर्क कि आप पहली वीडियो निकाल रहे हो, अब दूसरी वीडियो निकाल रहे हो, चल जाती थी. तो आप जितने भी कॉमिक्स उस टाइम के देखोगे ना, आप कौस्तुभ देखो, रोहित सिंह देखो, सबने बहुत लेट वीडियो निकाली है. रीजन बीइंग कि सबका ध्यान सोलो पे था. यार हमारे पास सोलो होना चाहिए, उसके बाद हम वीडियो निकालेंगे. देन केम द इंटरनेट पार्ट कि भाई अब तो निकालना है. तो अब वो सारा सिस्टम क्रैश हो गया. नाउ इट इज ऑल अबाउट गेटिंग डिस्कवर्ड. कि भाई तू डिस्कवर तो हो पहले, तेरे पास 1 घंटा 1.5 घंटा करेगा क्या रख के. तो वो वाला सीन आ गया. तो दैट इज द रीजन आई ऑल्सो टुक दैट मच ऑफ एन टाइम कि मैंने एक वीडियो निकाली. एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आई वॉज व्हेन आई रिलीज माई फर्स्ट वीडियो, तो उसके बाद आई वॉज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड कि मेरे दिमाग में वो था कि मैं वायरल हो जाऊंगा, कि मैं फट जाऊंगा इस वीडियो से और मेरे पास 30 मिनट टाइप है और बाकी मैं संभाल लूंगा. मेरे पास दूसरा वीडियो नहीं था डालने के लिए यार. तो फर्स्ट वीडियो के बाद अगेन टुक अ लॉन्ग गैप. ओके. एंड देन आई डिसाइडेड कि अब गैप हो ही गया है, तो अब मैं उस फॉर्मूला पे काम करूंगा कि आई शुड हैव मटेरियल कि मैं हर 3 महीने बाद वीडियो निकाल पाऊँ. Hence, You know, I saw आकाश गुप्ता डूइंग दिस थिंग कि उन्होंने क्या किया पहले, जैसे एक एंग्री यंग मैन का पूरा एक 1+R का था. So he broke it down to smaller pieces and released those first, and then पूरा एक साथ उन्होंने रिलीज किया. तो उस चैनल पे उनके he got the time to actually, like, the entire video is, let's say, 100%. So for the first month he drops in the 20 minutes पहले का, next month he drops in the next 20 minutes, and then the last 20 minutes की जगह he drops the full. So for the whole 3 month time period he kept the people engaged to his channel. People can do it likewise. एक घंटे को you can break it into 12 different parts and post every single month. So साल भर में you get one full 1 year 1 hour का special 5 minutes के bits and pieces में हो सकता है. It can also be 10 minute के 6 bits. You can have it every 2 weeks. You can upload. So that's a 3 month का चीज. And the next 3 months you'd go for a tour, तो tour के vlogs बना लो. I mean, these are the ways I feel कि 6 to 12 months में you can, if you're writing well, you can have the YouTube audience also equally engaged. बीच में, if the 3 months of your performances and 3 months of your tours के बाद 6 months खाली है, उस time में you can either do something else such as panel shows, because if you're that viral and you have done so much of uh, stand-up gigs in the clubs, you must be knowing a lot of people who are doing these panel shows. So you might, like, even if you're not being invited, you can get yourself invited and just do it. I feel that is the way to stay relevant. Contacts are very necessary, I feel. Uh, at least for panel shows, you need to know people or be that popular. But again, even if you are popular and you're not reachable, then how will you be called for the show? So yeah, the next part was around this time. Yeah. जो बस्किंग करते हैं उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट तो आप दो ही यार, कि भाई मैं Man, busking is very risky sometimes because you never know what the person you are approaching to might be thinking at that time. Sometimes weekdays I have seen people busking, and
sometimes जो रोड से जा रहे होते हैं ना बाकी लोग, they might not be having a good day. If they're having a good day, you don't have to worry. But if the otherwise situation is very risky, I mean, you might get, at least you might get scolded by the person, to say the least. मेरे पास इतनी लेवरेज है कि उत्कर्ष घर से निकला, एक ओपन स्पॉट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि भाई 5-6 ओपन माइकर लगे हुए थे। अगर वो नहीं लगे होते तो तू काय का ओपन स्पॉट है, तू कर ले 7 मिनट घर पे ही, नहीं कर पाएगा तू, क्योंकि टिकट्स तो गई नहीं है भाई, ओपन माइक तो करना ही है। तो तेरे पास अब मेरे पास ये कन्वीनियंस है कि मैं घर से निकल रहा हूँ, 7 बजे का ओपन माइक है तो मैं घर से 6:30 निकल रहा हूँ कि 7:30 पहुंचेंगे, गए 7 मिनट में अपना किया, 2 गालियां बकी इधर उधर, वैन बॉम्ब हुए, अच्छा हुआ और चले गए। बट मेरे को लगता है जो बंदे बस्किंग कर रहे हैं भाई, दे एटलीस्ट हम उनसे नॉर्मली तो बात कर ही सकते हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। मेरे को लगता है +1 लाना वाज अनदर चैलेंज जो हमारे टाइम पे होता था, बट अब तो भाई रैंडम लोगों से पूछना कि भाई बैठ जाओ, जैसे आप ही का एक्सपीरियंस है ना। अब आप भी सोच रहे हो कि यार क्यों, अब कभी आपका मूड ही नहीं है, कुछ लोग बहुत खराब जवाब दे देते हैं भाई, जो आप और मैं नॉर्मल लाइफ में नहीं सुनेंगे। बोले मैं जो काम करना अपना, को एक मेरे सामने का बंदा हुआ है, वो उसने जाके बोला कि सर स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा है, फ्री शो है, आप आओगे? कहता है अरे हमसे ज्यादा कौन फनी है भाई, ये बंदा लिख के लाया है जो को तेरे से 5x टाइम्स फनी होगा, 101%, उसकी मेहनत है यार, वो 6 महीने 8 महीने से कर रहा है। तो वो बस्किंग वाला सीन है, तो इसलिए फिर वो ओपन माइकर्स मेरे को लगता है थोड़ा सा टफ है। अच्छी बात ये हुई है कि कॉमेडी सीन ग्रो हुआ है ना, तो पीपल आर मोर विलिंग टू कम टू द शोज, तो बस्किंग थोड़ी सी इजी हो गई है, बट वो एफर्ट तो है ही यार। कल रात में मैं एक ओपन माइक कर रहा था, 10 बजे का ओपन माइक था, इट स्टार्टेड एट 11:05। ओके, 1 घंटा 5 मिनट तक सिर्फ लोग ऑडियंस ढूंढ रहे थे, और भर दिया उन्होंने रूम भाई 11 बजे रात में, और फुल हाउस भाई, और 30 लोग, और इतनी इन्होंने बस्किंग करी कि 11:15 तक लोग आते रहे, और उनको भगाना पड़ेगी भाई नहीं अब सीट नहीं है, ये वाला सीन है। और 1 घंटे से लगे हुए, एक बंदा बैठ गया, मेरे पैर में दर्द हो रहा भाई, 15-20 मिनट बाद जाऊंगा। तो वो सीन है, तो ओपन माइकर्स है, मतलब यार ओपन माइक का सीन नॉर्मल जनता को समझ नहीं आता, बट इट्स वेरी टफ भाई। और भाई जैसे जब अगर आप कहते हो कि मेरे को जैसे बैंगलोर टूर डालना है, ठीक है, ये सब करना है, तो इसमें कितना खर्चा आता है? भाई मैंने टू बी ऑनेस्ट अभी डाला नहीं है, ठीक है, देयर इज अ रीजन फॉर इट। मुझे लगता है कि जिस दिन मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा मैं दिल्ली एनसीआर में कुछ टिकट सेल कर रहा हूँ, उस दिन मैं डाल दूंगा। तो मेरे को टूर का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव एन आइडिया। यूजुअल जो बेसिक एक्सपेंसेस होता है, दैट इज यू हैव टू पे टू द वेन्यू, ठीक है, जिस वेन्यू पे आप जा रहे हो, या तो आप वेन्यू बुक कर लेते हो, या आपका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है कि टिकट सेल पे, तो दैट्स हाउ कॉमिक्स वर्क। अच्छा, कि या तो टिकट सेल पे आप रेवेन्यू शेयरिंग कर लोगे, या आप वेन्यू ही बुक कर लोगे, आप टिकट चाहे जितनी भी। तो भाई क्या कॉमेडियंस पैसा कमा पा रहे हैं? सोल्ड स्टोर की 1200 की शर्ट क्रेडिट कार्ड पे करके, आज मैंने जब उसका ईएमआई का ऑप्शन ढूंढा भाई कॉमेडियंस कमा पा रहे हैं पैसा, बट वो है कि टॉप टियर वेरी हैवी, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो आपको कंटेंट क्रिएशन में इन जनरल भी दिख जाएगा। तो जो कमा पा रहे हैं, अच्छा कमा पा रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, अब मुझे नहीं पता, हो सकता मैं पहुंचू और मैं कहूँ कि बहन चो ये सब ये भी साले दिखाई रहे थे, ये सब तो ईएमआई है। बट मुझे लगता है कि जितना मैंने सुना है, द काइंड ऑफ शोज पीपल डू, ठीक है, अच्छा पैसा है, लोग कमा पा रहे हैं। बाहरी जनता को तो यही लगता है कि भाई ये भी कॉमिक है तो ये भी कमा रहा होगा, ऐसा नहीं है। जो पहुंच गए, पीपल हु हैव मेड इट आर अर्निंग गुड, ठीक है, बट नीचे वाले साइड पे अगर आप आओ, आप ओपन माइकर साइड पे देख लो, और जब मैं ओपन माइकर बोलता हूँ तो दिस इंक्लूड्स मी ऑल्सो, है ना, या तो आप एकदम टिकट सेलिंग आर्टिस्ट ही हो, अनलेस अनटिल फिर आप ओपन माइक कर रहे हो, आप ओपन माइक ही कर रहे हो, लाइनअप ही कर रहे हो, तो उसमें आप नहीं कमा रहे हो, उसमें आप दे ही रहे हो, आप दे ही रहे हो। मैं पैसा लगा के अगर मैं गुड़गांव जा रहा हूँ तो भाई मैं दिन के 400 रुपए खर्च ही हो रहे हैं, और बॉम्ब होके आ रहा हूँ वो अलग, और कुछ खा लिया डिप्रेस होके तो और किसी ने शराब पूछ ली तो भाई 2000 रुपए का खर्चा, ठीक है कि भाई भंड भी हो गए, ठीक है, बुरा भी लग रहा है, पैसे भी नहीं कमाए, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। भाई आई थिंक मैंने आपसे पूछ लिया, बट इतना स्ट्रगल क्यों पालना है जब हम जॉब कर सकते हैं? ये ऐसा क्या प्यार है इस आर्ट फॉर्म से कि इतना स्ट्रगल पालना है? माँ कसम, पापा की जो याद दिलाई ना आपने अभी भगवान कसम भाई, एकदम मेरे को, आप मुझे तुषार बुलाओ, मैं आपको पापा। मुझे समझ नहीं आया कि पॉडकास्ट करने वाला भी तो इज नॉट डूइंग अ कन्वेंशनल जॉब ना, सो इफ ही इज हैविंग दिस क्वेश्चन फॉर अ स्टैंड अप आर्टिस्ट, आई थिंक उसको खुद क्लैरिटी नहीं मिली, बट दैट आई थिंक बुलाऊंगा भाई भाई बिल्कुल
पापा ये बोलते हैं क्या जरूरत है कह रहे कि जब हम गरीबी में ही हैं तो और गरीब क्यों हो रहा है भाई, क्यों होना है भाई? और जबरदस्ती का हासिल दिखा रहा है बैग उठा के कि भाई भाई मुझे सबसे खराब पता क्या लगता है, ओपन माइक घर पे आया हुआ बॉम्ब हो गया हूँ, ठीक है, और घर पहुंचा रात में 11:30-12 और मम्मी ना पानी का ग्लास ऐसे रख देती है ये बहुत मेहनत कर गया और पता ही नहीं है कि हाँ बॉम्ब हुए, 10 सुट्टे मारे शराब इसलिए नहीं पी क्योंकि घर जाना था तो झापड़ पड़ जाते, वरना शराब भी पी लेते ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं यार, उसका वही है कि मेरे को ऐसा रीजन लगता है कि शायद हर क्रिएटिव बंदे के साथ ही होता होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी पर्सनली, मी आई वॉन्ट टू मेक इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव टू मेक इट एनी हाउ। मतलब मेरे दिमाग में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कब होगा मुझे नहीं पता, बट आई विल डू इट, मतलब आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। मुझे ड्यूरेशन का नहीं पता, वो कल हो परसों जो भी टाइम होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। बट मुझे लगता है क्रिएटिव प्रोसेस में ना यार, एक बार आप में वो आ जाती है ना एक बार वो चीज कि यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आपने स्टार्ट इसलिए किया और आप नहीं छोड़ पा रहे तो आप नहीं छोड़ पाते यार। और फिर आपको लगता है कि ये मुझे बहुत सेफ स्पेस दे रहा है एज कम्पेयर टू एनीथिंग दैट आई एम डूइंग। आप जॉब भी कर रहे हो वो भी उतना ही टफ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जॉब को कभी इजी नहीं मानता। लोग ऐसे कहते हैं अरे बैंक जो नौकरी, भाई गांड फट जाती है नौकरी करने में, है ना। तो मेरे को ये लगता है कि वो ना छूटता नहीं है, बट ऐसा नहीं कि लोगों ने छोड़ा नहीं है। मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था कॉमेडी सर्किट में एक टाइम पे, अनुराग तेवतिया नाम था उसका, वेरी फनी गाय, उसका कैरेक्टर उसके पास था यार, मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, उसको ना कैरेक्टर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, मुझे आज भी है, उसको नहीं थी, ठीक है। एंड ही जस्ट इवेपोरेटेड फ्रॉम द कॉमेडी सीन बिकॉज ही डिसाइडेड कि यार मुझे नहीं करनी इतनी हसल, आई हैव अ जॉब, आई हैव अ फैमिली, द जॉब इज डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड इन लाइफ, मैं क्यों गाजियाबाद से 32 किलोमीटर 40 किलोमीटर रोज ट्रैवल करके आऊँ, दिस इज अ बेटर लाइफ दैट आई वांट टू लीड एंड ही इज डूइंग इट एंड आई थिंक ही इज वेरी राइट इन डूइंग दैट। एवरीबडी डजंट हैव टू गो थ्रू दैट स्ट्रगल भाई, वो डिजर्व नहीं करता, बट हाँ नहीं छूट पाता इतना इजीली। भाई पता नहीं भाई, जैसे आपने बोला ना कि आई हैव टू मेक इट एंड आई विल मेक इट, भाई मेरे को लगता है मैं भी ना उसी स्टेज में हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो 28, आई एम नॉट श्योर आपकी एज क्या है, आप मेरे से थोड़े बड़े हो आई थिंक। भाई गेस करो भाई मैंने आपके पेट की तरफ क्यों देखा, मुझे भाई वो तो यार यही गिव अवे कर देता है, पता है भाई, गिव अवे कर देता है। मैं 18 साल का लगता है आपको 31, आई एम 36 भाई, 36 भाई, अरे आई विल टर्न 37 ओके भाई। तो मेरे को ये लगता है कि मैं भी भाई इसी उसमें हूँ। और यार मतलब अब मेरे को पता नहीं मेरे अंदर से क्या, लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई क्यों करना है। अब जैसे अभी लास्ट के पॉडकास्ट चलो भगवान की दया से एल्गोरिथम की ठीक चल रहे हैं पर भाई उससे पहले 200 व्यूज है पॉडकास्ट पे, और लोग मेरे से पूछते थे भाई क्यों करना है तेरे को 1.5 घंटा बैठ के, उसका तेरे को एडिट का भी खर्चा देना है। मैं भाई पता नहीं, मतलब वो अंदर से आता है, मेरे को करने का मन करता है, ये मेरा सेफ स्पेस है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मुझे ही पता है कि ये मेरी जगह है, यहाँ पे मैं हूँ। तो भाई मतलब आई डोंट नो कि लोग कितना ज्यादा, मतलब ओके टू बेटर वे टू पुट दिस इज कि एक टाइम के बाद क्या हम ब्लर हो जाएंगे कि हमारा ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, और एक टाइम के बाद At this point, he's saying it, which I can understand. Every new artist has this, especially when it comes to communicating with people. If you were that good, you would have been the, like, your videos would have been really good. But हाँ ठीक है, I think I'll edit this part. हो जाएगा कि भाई बाकी सबको दिख रहा है कि बहन जो नहीं कर सकता, और तुम्हें अंदर लग रहा है कि तुम कर सकते हो। भाई वो कितना स्केरी सीन है टू बी इन, भाई बहुत स्केरी है। मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एम आई फेकिंग टू मच, रात में बैठे हो भाई तुम बिल्कुल ही, है ना। और हर किसी को मतलब आप उतर रहे हो स्टेज से और आपका खराब गया माइक, आपको लग रहा है कि यार हो सकता है मेरे अंदर वो हो ही ना। तो ना मेरे को उसका वो लगता है कि जब आपको ये फीलिंग आ जाना कि यार क्या मेरे अंदर वो नहीं है, तो आपको पीछे रिफ्लेक्ट करके यू शुड सी द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव गिवन टू योरसेल्फ, है ना। कि आज का दिन खराब हो सकता है, बट क्या ये दिन रेगुलरली खराब ही जा रहा है, क्या ये 1 साल से खराब ही जा रहा है? अगर खराब जा रहा है तो या तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, एंड इफ आई एम विलिंग टू चेंज, इफ यू आर नॉट, यू शुड क्विट। कि भाई एक साल सफिशिएंट होता है ना, कि 1 साल में आपको, आप अपने को, फॉरगेट सोसाइटी, फॉरगेट एनीवन, आप अपने को एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देते हो रेगुलर विंस की, कि आज मैं जीता कल हारा, आज मैं जीता कल हारा, इस तरीके से। तो छोटी छोटी विंस होती हैं आपके पास। अगर आपके पास वो विंस नहीं है पिछले 1 साल में,
तो या तो आप इम्प्रूव करोगे कि आई हैव टू इम्प्रूव, आई हैव टू बी बेटर एट दैट, समथिंग नीड्स टू बी चेंज। अगर आप में ये फीलिंग आ रही है, स्टिल यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, बिकॉज कुछ तो आपको बोल रहा है ना कि नहीं यार ये ठीक कर ले, रियलाइजेशन हो गया ना, रियलाइजेशन हो रियलाइजेशन कर लिया आपने। हाँ, कि भाई एटलीस्ट समथिंग इन यू इज स्टिल पुशिंग यू टुवर्ड्स दैट, कि नहीं यार ये ठीक कर, अब ये करेंगे। तो आप अभी भी उसी उसमें अलाइनमेंट में हो। लेकिन आपने देखा कि 1 साल में आपको आपका POC प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं मिला और अब आप चेंज भी नहीं करना चाहते, देन यू गिव अप। आपका तब आपका मन ऐसा हो जाता है कि यार लेट इट बी। पर भाई आई फील कि ऑप्टिमाइजेशन तो आप हर चीज में कर ही सकते हो ना, जब तक आपकी विलिंगनेस है। मतलब कोई कितना ही खराब आदमी हो सकता है कि वो ना कर पाए भाई खराब मतलब कितना ही ऑप्टिमिज्म बोलना चाह रहा था कि सही में ऑप्टिमाइजेशन वाज द वर्ड ही वाज ट्राइंग टू से। खराब होना पड़ेगा कि तुम बेंच चीजें ठीक करके भी नहीं कर पा रहे हो। भाई मेरे को ना ऑप्टिमिज्म को ऑप्टिमाइजेशन बोला है। आई फील आई might be optimization here, but thought. But this podcast is good. I found a few of things to be very insightful. Plus, someone who has been in the industry for 6-7 years, around that much of time, they must have something to share, you know. तो मेरे को बिल्कुल, मैं मधुर मॉडल में गया था। मधुर मॉडल का फर्स्ट एपिसोड में था मैं। ओके, ठीक है। और लोगों ने मेरे को काफी सारे पीयर ग्रुप के लोगों ने बोला कि तेरे को वहां जाने की जरूरत नहीं थी, इट वाज ऑल फॉर ओपन माइकर्स। और मैंने कहा कि मेरा एक ही काम है, टू बी डिस्कवर्ड, एंड दैट इज माई ओनली जॉब। ठीक है, अगर मैं फनी हूंगा और मैं डिस्कवर हो गया तो पीपल विल लव मी, अगर मैं फनी नहीं हूँ तो मैं डिस्कवर ही नहीं हूँ। पहली बात तो किसी प्लेटफॉर्म से अगर डिस्कवर हो गया और मैं अनफनी हूँ तो मैं वैसे ही रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो पहले डिस्कवरी मिल तो जाए, तो मैं हर वो काम करूंगा जो मेरा काम है। और मेरे को जीरो दिक्कत है भाई, मैं 6 बार 10 बार 15 बार 20 बार, क्योंकि यार काम ही तो है, काम ही तो करने आया। मतलब मेरे पास वो प्रिविलेज है ही नहीं कि आई कैन जस्ट सिट एंड डोंट हैव वर्क, है ही नहीं। मतलब मेरे को पता चल गया है, ना पैसे ना प्रिविलेज, कुछ नहीं है भाई। तो अपने पे ही करना है। वो तो आप कॉमेडी क्यों करते हो, पैसे के लिए या किस चीज के लिए? नहीं भाई, नॉट एट ऑल। पैसे के लिए करके देख ली, हुई नहीं। पैसे के लिए कर रहा था तो होते ना। मैं सिर्फ कर्म के लिए कर रहा हूँ भाई। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मेरे पास फेम और पैसा होगा, तो मैं बस इसलिए कर रहा हूँ। That's it. बट हाँ, मेरे को अगेन वो जो फीलिंग मैं आपको फर्स्ट डे बताई, मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगती है कि मेरे पास माइक है और 10 लोग हैं जिनको मैं अपनी बात सुना सकता हूँ, और वो सुनेंगे और मस्ती भी होगी, मजा भी आएगा। और अगर मुझे कोई थॉट देना है सोसाइटी में, तो वो भी मेरे पास प्लेटफॉर्म है कि अगर मैं 2 मिनट का थॉट भी दे पाऊँ विद समथिंग दे कैन टेक होम, तो और भी बढ़िया बात हो जाएगी। अभी मैं उस लेवल पे हूँ नहीं, वो थॉट वाले पे। पहले मेरे को लगा मेरा फर्स्ट काम फनी होना है, पहले मैं जितना फनी हो जाऊँ उतना अच्छा है। लेकिन मेरे को थॉट देना पसंद है। अगर मैं एक बंदे को भी थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस कर पाए कि हाँ यार ये बंदा ठीक बोल रहा है, अब से ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, तो मुझे लगता है कि भाई मैं तो इस चीज़ का बहुत फर्म बिलीवर हूँ भाई। आज के ज़माने में जहाँ पे AI आ चुका है, लोगों की भाई थॉट है ही नहीं लोगों में। नहीं भाई, मतलब लोगों में ओरिजिनलिटी तो ख़त्म है। मतलब अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर की अगर आप 5-6 वीडियोस देखते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चैट GPT कर रहा है या फिर ये खुद दिमाग लगा के लिख रहा है, क्योंकि लोग वो वॉइस खोना शुरू हो गए हैं। और वो उसकी बहुत कमी है आई थिंक। भाई एक तो अब सबको वायरल होना है, वही दिक्कत है। सबको चाहिए कि तुरंत, है ना, वही एल्गोरिदम की भाई, और लोग हो भी जाते हैं वायरल, तो सबको वायरल होना है। ठीक है भाई, उसमें कोई हो भी जाता है। अब नहीं है आपकी मेरी तरह किस्मत ना उसकी, वो इसी जन्म के राजा है। कैसा लगता है भाई कि अगर ऐसे 5-6 कॉमिक्स हो जिसमें से एक फट जाए? ऐसा हुआ है आपके साथ अभी तक कि कोई ऐसा हो कि 4-5 लोगों साथ में? नहीं। भाई मेरे साथ जितने कॉमिक रहे उन्होंने छोड़ ही दी कॉमेडी। तो भाई आप हुए ना वो जो आगे निकल रहे हो। तो मैं अभी वो वाली रील नहीं हुई थी कि एक बंदी बस भाग रही है कंपटीशन में अकेले, तो वो गोल्ड मेडल ले ही जाएगी, मैं वो। बट जैसे मेरे साथ के बहुत ही कम कॉमिक्स बचे मेरे टाइम के, बेसिकली 2018-19 बेसिस अगर आप स्पेसिफिकली बात करो, मेनी ऑफ देम हैज लेफ्ट कॉमेडी, छोड़ ही दी उन्होंने कॉमेडी। बट कुछ लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे विजय पांडे। ठीक है, विजय पांडे अगर आप एक्सप्लोर करोगे, एक तो साला बहुत सुंदर आदमी है वो यार,
वाइट बाल। हाँ, नहीं नॉट वाइट वो दैट इज अविनाश तिवारी, ही इज आल्सो वेरी गुड फ्रेंड। सो अच्छा। मी, विजय पांडे, अविनाश, सुरेंद्र, एक टाइम पे बहुत चिल मारा हमने साथ में। तो अविनाश तिवारी अगेन भाई बहुत ही फनी आदमी, मुझे बहुत फनी लगता है वो। और एक और रीजन लगता है मैं अविनाश को इतना एडमायर करता हूँ या किसी भी कॉमिक को, जब मेरे को लगता है कि यार ये मेरे को सीखना है, तो अविनाश ऐसे जोक्स करता है जो मेरे को लगता है कि यार ये आई स्टिल हैव टू लर्न दैट, कि मेरी कॉमेडी में अभी वो आर्ट नहीं आई है, मैं अभी उस तरीके से नहीं लिख पाता हूँ जैसे ये लिख पाता है या उसकी स्टेज प्रेजेंस। तो दैट इज अविनाश। विजय पांडे वो साला एक तो सुंदर आदमी है वो। Apart from writing, he also said stage presence, which is very important. Just wanted to keep that highlighted. ठीक है, और भाई मेरे को वैसा भाई इतना सॉर्टेड बंदा है वो, इतना माइंड क्लियर है उस आदमी का। उसने कॉमेडी बीच में कर रहा था, उससे डिस्कशन होता था, वीडियो डालनी नहीं, कह रहा नहीं भाई अभी राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस। उसने बढ़िया अपने आप को इम्प्रूव किया, आर्ट पे काम किया, क्राफ्ट पे काम किया, अब शो कर रहा है, वीडियो डाली फटी नहीं, बट ही सेलिंग टिकट्स, ही हैज गुड फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ही सेलिंग टिकट्स रेगुलरली, और वो देख के मुझे अब जेन्युइनली अच्छा लगता है। तो जब आप ये फील कर लो ना कि यार मैं अगर इससे सीख लूं तो मेरा भी हो जाएगा, तो फिर वो जलन फैक्टर हट जाता है। जलन फैक्टर तब रहता है जबकि बैंक जो मेरे साथ था बिल्कुल ही, है ना, और हम सेम ही है और मैं ज्यादा किल कर रहा हूँ, तब नहीं हो रहा, तब आपको जलन आता है। मैं थोड़ा उसको रिवर्स में ले लेता हूँ कि यार अगर क्यों ये आगे चला गया, इसलिए आगे चला गया क्योंकि उसने अपने क्राफ्ट पे काम किया, और हो सकता है तेरे को अभी क्राफ्ट इंप्रूव करने की जरूरत हो तो वो कर, तो मैं उसको तुरंत उसमें ले जाता हूँ। वरना तो भाई आप नहीं सर्वाइव कर, फिर आप टॉक्सिक हो जाओगे सब्जेक्ट में, फिर आप डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आल्सो। ठीक है, मैं स्टेज पे गया भाई पूरा फंबल, तो तरुण ने बोला So I think तरुण this is बस the लाफ क्लब हुआ करता था, bonus और part. वहां पे एक बंदा था आकाश पांडे, ही यूज्ड टू मैनेज कैनवस। तरुण का अपेरेंटली कोई कांटेक्ट उसके ऑफिस में आकाश पांडे डायरेक्ट था, तो तरुण ने बोला तेरे को स्पॉट दिलवा दूंगा। उसने स्पॉट दिलवाया, आई वेंट फॉर द ओपन माइक एंड दिस वाज 20th November 2017, स्पेसिफिक डेट याद है मेरे को। मैं गया ओपन माइक में, ठीक है भाई, 9 कॉमेडियंस, और कैनवस गुड़गांव था वो, तो गुड़गांव ना स्टेज बहुत ऊंचा है, एंड वहां पे मैं कॉमिक से मिला भाई, 6 फीट, अच्छी खासी पर्सनालिटी, दाढ़ी वाड़ी और 3-piece सूट, और मैं कहा भाई मैं तो बहुत ही गलत आ गया, मेरे को लगा कि हाँ फन करते हैं, मतलब ऐसे ड्रेसअप होके आ तो कॉमिक्स को मुझे नहीं पता। तो भाई वो बंदा गया और उसने अच्छा किया काफी, मतलब बढ़िया, और पता चल रहा था अपेरेंटली ही वाज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आल्सो। ठीक है, मैं स्टेज पे गया भाई पूरा फंबल, एक जगह बस किसी ने ना ऐसे ताली बजाई, ठीक है, और वो दूसरा वही वो 6 फुट वाला आदमी, उसने ऐसे ताली बजाई। तो मेरे को भाई सबसे प्यारी चीज ये लगी ना कि एक लौता ऐसा सेटअप है जहां 10 लोग हैं, मैं स्टेज पे हूं, मेरे हाथ में माइक है, अब मैं जो बोलूं तुम उठ के नहीं जा सकते अब मेरे को जो करना है तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि तुमने पैसे दिए, ठीक है, और मेरे पास माइक है। तो ये फीलिंग तो भाई मेरे को अमेजिंग, घर पे कोई नहीं सुन रहा मेरी, ऑफिस में कोई नहीं सुन रहा मेरी, पूरी दुनिया में कोई नहीं सुन रहा मेरी, ये बड़वे जो 250 रुपए की टिकट लेके आए हैं, ये 5 मिनट तक इन्हें मुझे सुनना पड़ेगा, मैं जो भी करूं। तो ये मेरे को ना बहुत ही इंपावरिंग चीज लगी ठीक है, फ्लैट टैंक हुआ मैं, वो बंदा मिला मेरे को, बाद में उसके साथ सुट्टा उट्टा मारा, चले गए। एंड उसके बाद देन आई स्विच्ड माय जॉब, और बहुत ही एक टॉक्सिक कंपनी में गया मैं भाई, वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एवर, जिस चक्कर में हमने वीडियो बनाई। हाँ एग्जैक्टली हाँ, वो मतलब वो वीडियो का बेस था मेरा, वो कॉर्नर स्टोन है। अभी जो दूसरी वीडियो में मैंने उसके मैनेजर का नाम लिया सीधा ठीक है, और इतना था कि मतलब 6 महीने हुए होंगे एंड आई वॉज इन टू बॉर्डर लाइन डिप्रेशन, मतलब वो ऐसा था, मेरे घर वालों ने बोल दिया था कि छोड़ दे नौकरी, ये नहीं हो पाता। ठीक है, स्टैंड अप से ब्रेक आ गया, 6-8 महीने छूट गए, और उससे पहले मैं स्टैंड अप शोज बहुत देखता था, तो आई वाज अ फैन ऑफ विपुल गोयल, आई वाज अ फैन ऑफ जाकिर खान, तो इनके शोज देखना, जाकिर खान का हक से सिंगल जो रिकॉर्ड हुआ है अमेजोन में, आई एम देयर, अच्छा उसके फ्रेम्स में, हाँ मैं बैठा हूँ, मेरी बंदी बैठी है, 3 महीने बाद ब्रेकअप हो गया था हमारा तो वो एक एविडेंस है ठीक है, अपेरेंटली। थोड़ा सा माइक पास कर लो भाई, बस थोड़ा सा, ठीक है, और उससे घुमा लो अपनी तरफ, कोई मूव कर सकता है, उससे कुछ स्ट्रेस नहीं है, हाथ में ले लो सकते माइक ना, ठीक है, सॉर्टेड, ठीक है। हाँ, तो भाई वो अमेजोन, तो मैं स्टैंड अप रेगुलरली दिखता था, यूज्ड टू फॉलो विपुल गोयल, उनके शोज में भी चला जाता है एवरीथिंग। फिर ये टॉक्सिक जॉब हुई, छोड़ दी मैंने बीच में आके, मैंने सोचा कि 3-4 महीने ब्रेक लेते हैं, चिल मारेंगे। उसके बाद जाकिर खान का शो हो रहा था सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम, ठीक है, आई वेंट फॉर द शो, ठीक है, बीइंग जाकिर फैन। वहां पे अनाउंस करते हैं होस्ट को, एंड द होस्ट इज अनुपम सिंह बस्सी, ठीक है, वो स्टेज पे आता है और मेरी गांड फट जाती है कि ये वही आदमी है जो मुझे कैनवस लाफ क्लब में
open mic. Exactly. So that was Anubhav Singh Bassi भाई. So we met there at first time. ठीक है. और मेरे को लगा यार अभी कितना ही टाइम हुआ है ना, 6-8 महीने 1 साल हुआ होगा. एंड ही इज ओपनिंग फॉर जाकिर खान इन अ सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम में ओपन कर रहा है, कितनी बड़ी बात है. और मेरा फ्रेंड भी बैठा था मेरे साथ में जो फर्स्ट ओपन माइक में एज अ ब्रिंगर गया था. तो ब्रिंगर इज +1 जो आप ले जाते. ठीक है. तो उसने बोला कि उसने मेरे को ऐसे मारा कि भाई कुछ हो सकता है इसमें, कुछ हो सकता है. एक तो भाई मैं आपको सही बताऊं ना, मेरे को लाइफ में इन लोगों से बहुत दिक्कत है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है. इन भड़ो जो गांड मराई भाई मैंने इनके चक्कर में कि भाई कर लेंगे भाई लैम्बोर्गिनी तो हम भी खरीदेंगे जस्ट बिकॉज आई हैव ट्रस्टेड देम. भाई ये हो जाएगा, भाई इसने भी तो कर लिया भाई, और शो ही नहीं देख रहा भाई, इसने भी तो किया ना भाई, 8 महीने तो लगते हैं भाई, जाकिर भाई के साथ है वो. मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा भाई, यस लेट्स डू इट. तो शो खत्म हुआ, हम लोग बस्सी से मिलने गए. एंड बस्सी बीइंग सच अ नाइस पर्सन, ही रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली. उसने बोला हाँ भाई तूने क्या कर रहा है आजकल, कर रहा है ओपन माइक्स? मैंने कहा नहीं मैंने छोड़ दिया. कहता क्यों छोड़ दिया, यू आर रियली गुड. तो मैं कहा भाई अब ये बोल रहा है तो उसने बोला कि तू एक काम कर, तू वापस कैनवस जा और स्पॉट के लिए दिक्कत होगी ना तो बोल दियो कि मैं बस्सी भाई के साथ परफॉर्म करता हूँ एंड दे विल गिव यू स्पॉट. तो टेक्निकली मेरी दोबारा कॉमेडी बस्सी ने शुरू करवाई. ओ भाई. मैं गया, मैं उनको बोला कैनवस में कि मैं बस्सी के साथ स्पॉट किया. दे इमीडिएटली गेव मी दी स्पॉट. और उस टाइम पे कैनवस नोएडा खुल गया था. तो दिस इज लेट 2018 स्टार्टिंग 2019. तो वहां से फिर ओपन माइक की जर्नी शुरू हुई एंड देन नेवर लुक बैक. भाई मैंने तो बस्सी भाई को, मेरा जो जितना भी मैंने उन्हें देखा है, मैंने देखा था मैं पहला अपना कॉमेडी शो देखने गया था, वो था दुआ सूरी शो जो हाँ, जो उसके बाद आया था है ना. तो उसमें एक बंदा आया और वो होस्ट कर रहा था और वो अनुभव सिंह बस्सी. मेरे को पता नहीं था, मैंने कहा भाई ये पहली बार कोई बंदा देखा. मैंने ना इंटरनेट पे कोई प्रेजेंस थी ना कुछ था. भाई वो रूम ना पागल हो गया था. मतलब मैं शो से ज्यादा मैंने वो ओपनिंग एक्ट वो एंजॉय करा था. और तब मेरे को पता लगा था. उसके बाद वो वीडियो डली ऑनलाइन और वो वायरल हुई और फिर भाई बस्सी भाई तो बस्सी भाई. भाई मेरे को लगता है, मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे पता नहीं इस बारे में कितनी बात की गई है, बट मुझे लगता है लोग ये बोलते हैं कि बस्सी वेरी गुड भाई आपके फोन में से आवाज आ रही है. नहीं ठीक है कर ले. तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत लेस टॉक्ड है, बट लोग ये बोलते हैं कि बस्सी गॉट वायरल वेरी अर्ली. ठीक है, वो सिर्फ टाइम फ्रेम देखते हैं, वो सिर्फ एक टाइम नहीं देखते हैं कि बस्सी ने 1 साल 2 साल वॉटेवर में इतनी जल्दी फट गया और वायरल हो गया. मुझे लगता है द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट ही हैज डन. तो जितने ओपन माइक्स हम अभी करते हैं ना, ये हम हफ्ते में 1 कर लिए, 5 कर लिए, बस्सी उस टाइम पे 5 करता था यार. तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा टेन्यूर इसलिए लंबा है क्योंकि हम वीक में 2 ओपन माइक्स 3 ओपन माइक्स कर रहे हैं. बस्सी 1 दिन में कर लेता. He used to stay there in the clubs. तो इसलिए लोग कहते हैं कि वो जल्दी, भाई उसको उसी का वर्थ मिला बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क दैट ही हैज डन. और ये हमारे सामने की बात है. यू हैव सीन हिम कि हाँ भाई पता चलता था, लोग बताते हैं कि बस्सी भाई यहीं बैठे रहते थे, लिख रहे हैं कर रहे हैं, लिख रहे हैं कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहा है वो आदमी, सब कुछ छोड़ छाड़ के लगा हुआ है. तो मुझे लगता है कि उसने वो टाइम फ्रेम इसलिए कम है बिकॉज वो स्किल बहुत जल्दी डेवलप करनी उन्होंने. तो दैट शुड बी गिवन. मेरा क्वेश्चन यही था कि भाई अपार्ट फ्रॉम कंटेंट और ऐसी क्या चीजें हैं जो कि कॉमेडियन को फेमस करते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट जस्ट बी योर कंटेंट, ऑब्वियसली इट इज परफॉर्मेटिव आल्सो. जैसे अगर मैं अगर सेम मटेरियल करूं जो बस्सी भाई कर रहे हैं और बस्सी भाई कर रहे हैं, भाई वो जमीन आसमान का फर्क होगा ऑब्वियसली. तो और क्या चीजें होती हैं जो कि एक कॉमेडियन को बनाती हैं? भाई मेरे को लगता है अब, एंड इट इज वेरी रेलेवेंट एज ऑफ राइट नाउ. तो पहले स्टैंड अप में क्या हो रहा था कि आप, स्टैंड अप वाज प्रीटी न्यू टू द कंट्री है ना. इंडिया में पहली बार स्टैंड अप आ रहा था, तो जो भी वीडियो डाल रहा था वो फट रहा था. ठीक है, तो वीडियो डाल रहे थे, व्यूज आ जा रहे थे. अब जो मैटर करता है, एंड तब के भी कॉमिक्स में जो अभी चल रहे हैं, इज ऑल ऑफ कैरेक्टर. आपने बिल्कुल सही बोला कि बस्सी का मेरिट वाला जोक आप कर दो, मैं कर दूं, नहीं चलेगा. वो बस्सी ही करेगा तो चलेगा. तो इट इज नॉट दैट जोक, इट इज द पर्सनैलिटी, इट इज द पर्सन हु इज सेइंग दैट जोक. कि वो दिख रहा है ऐसा कि जब वो बोल रहा है कि मैं मेरठ से हूं, है ना, अब मैं बोल दूं कि मैं मेरठ से हूं तो भोसले बात तो जीभ भी सीधी निकल रही है भाई. तो कोई नहीं मान रहा. तो इट्स दी कैरेक्टर. आकाश गुप्ता सेम, गौरव गुप्ता, आप जितने भी अच्छे कॉमिक्स है, अभी जो रिसेंटली नमन हुआ है, शुभम हुआ है, शुभम पुजारी, ऑल ऑफ द कैरेक्टर. आप नमन की वीडियो देखोगे आप देखते ही रह जाओगे. ये सच अ गुड कैरेक्टर ऑन स्टेज. जब आपका कैरेक्टर बन जाएगा ना, जोक्स तो फिर जोक्स है, जोक्स तो आप कोई भी कर दो, समय रहना समय रहना की जोक्स ठीक है. सो पहले आप देखोगे, पहले के कॉमेडियंस के जोक्स याद रखे जाते थे. रवि गुप्ता वेंट वायरल बिकॉज़ कल की चिंता नहीं. आज के कॉमिक्स वायरल होते हैं, उनके जोक्स याद नहीं होते आपको कॉमिक याद रहता है कि यार नमन का देखा था, बढ़िया करता है वो. तो वो क्यों याद है? बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर दैट ही इज पोर्ट्रेइंग.
the effortlessness जिससे वो जोक्स कर रहा है, तो कैरेक्टर बहुत जरूरी है. हम्म. That Ah, is what I have realized also from my side also. कि यार वो जब तक कैरेक्टर नहीं दिखेगा ना, जोक आप कितना भी अच्छा कर लो, नहीं आ रहा मजा तो नहीं आ रहा. मतलब आपस में आप और मैं ही एक कॉमेडियन से ज्यादा अच्छे जोक्स करते हैं. लौंडे बहुत फनी है ना, लड़के बहुत फनी है आपस में, बट all right. So that brings us to the end of this uh, reaction. तो नहीं बोलूँगा, but this was also something I felt worth sharing. It was worth knowing because a lot of insights were discussed. Uh, Never heard a comedian speaking out this way as uh, Utkarsh Singh had done it. Didn't know Masti के बारे में, got to know a lot about him. Yeah, so that was it. Hope it it's useful for some more people. Yeah, चलो, that is all. Bye bye.